Hi everyone and welcome to the first episode of Beyond Borders. And today we have somebody very special with us. Hi Prithvi and welcome to the show. Thank you. Hi, how are you doing? Doing good. Thank you so much for asking. And all set? I'm good. I'm all set. CITA कौन नहीं जानता, सबको पता है क्या है, लेकिन nothing better than hearing from the horse's mouth. Yes. Prithvi, today's show is basically divided into multiple segments. पहले कुछ generic questions हैं, फिर controversial है, फिर rapid fire है, और फिर कुछ ऐसे questions हैं. पृथ्वी, मैंने कुछ ना अपने social media पे डाला कि आज मैं एक podcast ले रही हूँ CITA के साथ. कुछ हमारे questions हैं जो हमारे public ने पूछे हैं, तो हमने सब जॉट डाउन करके एक बहुत ही अमेजिंग सा बनाया है राउंड, जो कि हमारा 4th राउंड है आज. Okay. So I'm all set. I'm all ready. Done? I'm open for all. Perfect. Rolling. Yes. पृथ्वी, CITA, पहले तो हम सबको ये बताओ कुछ बहुत ही आसान शब्दों में, क्या CITA है, कब बना, कैसे शुरुआत हुई? So CETA is formed in 2009 and it is started by the vision of Mr. Krishnalal Mathok. He started this to educate the Indian people, to give the recruitment to the Indian people. और 2009 से आज 2025 तक हम इस रेस में भाग रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं. एंड CETA इज़ itself a brand because हम लोग एक वो कंसल्टेंट्स है, एक वो रिक्रूटमेंट कंपनी है जिन्होंने बहुत कुछ देखा है. इट्स जस्ट नॉट दैट वी जस्ट स्टार्टेड विद एवरीथिंग इन आवर हैंड. नो, वी स्टार्टेड विद ज़ीरो. वी स्टार्टेड विद समथिंग, वी हैड नथिंग. ये जो पानी की बॉटल है ना, आई यूज टू सर्व दिस टू माई स्टूडेंट्स व्हेन दे यूज टू कम टू आवर ऑफिस. सो इस तरीके से हमने इसको बिगिन करा है. सो इट्स नॉट लाइक कि आप बैठे हो, यू हैव एवरीबडी सिटिंग इन देयर. नो, इट्स लाइक दैट वी आर सिटिंग ऑन अ टेबल, कैंडिडेट इज कमिंग एंड वी डूइंग एवरीथिंग बाय आवर ओन. कैंडिडेट आया, उसको हमने पूछा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. सो वी स्टार्टेड लाइक दैट. So we started with the vision to educate, but yes, with zero investment initially. That's the vision of Krishnalal Mathok ji. Wow. We lost him in 2018, but the legacy is still going on with that vision. Now we have everything. With his blessings, with his good work that he has given to us, we have everything now. But yes, when we started, so I used to come to this office by bus way back in 2009-10. So मतलब हम वो लोग हैं जिन्होंने बसों में खड़े होके फिर ऑफिस आए हैं. आज वो दिन है जब हम अपने एक खुद प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं विद एवरी फैसिलिटी इन दैट. सो दिस इज CETA. वी हैव बिल्ट ड्रीम्स ऑफ मेनी पीपल. बेसिकली आई एम हियर और मैं बताऊंगी बहुत जल्द कि मैं एग्जैक्टली कहाँ बैठी हूँ, और इसका मज़ा यहाँ बैठने का अलग ही है. एंड आई एम श्योर इट्स अ ह्यूज जंप, एंड जहाँ मेहनत करो वहाँ सफलता जरूर मिलती है. या दिस वाज ग्राउंड जीरो फॉर अस. इट वाज कंप्लीटली प्लेन. We built it. I spent my day, night here. I have given everything to this, and today you we are have here. made it beautifully, guys. Like I said, I'll be showing you where we are sitting, how it's important, and I can, when I actually met all of your team members, Yeah. I can see the vision. Yeah, Commendable. it's a Congratulations teamwork. for that. Thank you. It's a teamwork. It's not me who started it. It's a blessing of lot of people with lot of vision. Okay. So, beyond admissions and visas, you also deal in training students for English, soft skills, and even interview prep, right? Why did you feel this holistic approach was necessary? See, this is necessary. आज बच्चा उठ के कपड़े पहन के इंटरव्यू देने चला गया तो उसमें ये नहीं है कि नौकरी मिल जाएगी. The airlines, the recruitment, the HR people look beyond that. कि वो बंदा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है. ही इज गोइंग टू स्टार्ट हिज करियर विद आवर कंपनी, सो ही इज गोइंग टू बी अ ब्रांड ऑफ आवर कंपनी. सो इट्स नॉट द एयरलाइंस ऑनर हु फ्लाई, इट्स अ क्रू मेंबर हु फ्लाई एंड दे बिकम द ऑनर. सो वी ट्राई एंड मेक देम ऑनर इन अ वे जहाँ पे हम उनकी ग्रूमिंग, उनकी पर्सनालिटी, उनको इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करते हैं, सो दे बिकम द इंडस्ट्री रेडी मेड पीपल. So it's a 360-degree approach which you follow? Yes, we do. इंटरेस्टिंग. हर स्टूडेंट का एक कंफ्यूजन होता है, कनाडा जाएं, यूके जाएं, यूएस जाएं, कहाँ जाएं? तो ये आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो? सो ये हम बहुत इजी वे में सॉल्व करते हैं उनका ये भी क्वेश्चन. उनका विजन क्या है? उनको पढ़ना है, उनको वहाँ पे सेटल होना है, उन्हें वहाँ पे पढ़कर एक अच्छी जॉब लेनी है, उनको पढ़ के वापस आके अपने डैड का, अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का बिजनेस रन करना है.
उसके अकॉर्डिंग हम उसे वो ऑप्शंस देते हैं. So if somebody wants to get settled, we give them an option of countries like Canada, US. If somebody wants to study, and that to a good study, then there is no market. Students who are willing to do that, please do hear this, because actually it's very confusing. Yes, please. It is very confusing for a lot of people, and बहुत सारे agents ने इसको confusing बना भी रखा है. So अगर आपको एक अच्छी study करनी है, go to UK. आपको एक अच्छा technical study करनी है, you want to become an engineer, go to US. If you want to become into something to do into hospitality, go to Australia. So you know, हर country की एक speciality है. At the same time, it is not just speciality. They are wonderful in every stream. But yes, किसी candidate के पास funds का issue आता है कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है. Now if somebody wants to go to Canada, उसको 30 लाख रुपए चाहिए पहले साल. Absolutely. So if somebody do not have that money, तो उसको बाहर तो जाना है ना. We guide them. We guide them to go to UK. कितने ऐसे cases आते हैं आपके पास जिसमें कंफ्यूजन अराइजेस कि कहाँ जाए, बट मेरा बच्चा बाहर पढ़ना चाहता है? 80%, 80% लोगों की यही कंफ्यूजन है, कहाँ जाए और क्या होगा वहाँ जाके. बिकॉज बच्चा यहाँ से जा रहा है, ही इज जस्ट 18, शी इज जस्ट 18, 19 ईयर्स ऑफ एज. कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, कैसी सेफ्टी है, क्या क्या वहाँ पे बच्चे को जाके प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. सो वी सॉल्व एवरीथिंग फ्रॉम हियर. वी गिव देम अकोमोडेशन फ्रॉम हियर. नो अदर कंसल्टेंट डू दैट. हम यहीं से उसको अकोमोडेशंस देते हैं, हम यहीं से उसको वो फैसिलिटीज देते हैं कि बच्चा इज इन सेफ हैंड. आप और तो और छोड़ो, हम यहीं से उसको इंटरनेशनल सिम कार्ड भी दे देते हैं कि ये लो सिम कार्ड, आप पहुंचो, आप लैंड करो, लैंड करने से पहले अपने पेरेंट्स से कनेक्ट हो जाओ, आई हैव रीच्ड. और क्या चाहिए? क्या बात है, क्या बात है, वेरी इंटरेस्टिंग. एक क्वेश्चन था जी. सिटा एविएशन इज नोन एज इंडियाज नंबर 1 ग्रूमिंग स्कूल, राइट? यस. तो हम जब केबिन क्रू और एविएशन स्टाफ की बात करते हैं, हाउ डू यू ब्रिज द गैप बिटवीन ट्रेनिंग एंड रियल एयरलाइन प्लेसमेंट्स? सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये नहीं करते हैं. दे जस्ट गिव देम वन रूम, बैठो, पढ़ो और जाओ. हियर वी डू द एवरीथिंग, वी डू एवरीथिंग प्रैक्टिकल. यू विल बी अमेज्ड टू नो. प्रैक्टिकल तो मैं देख ही सकती हूँ, आप बैठे ही वहाँ पर हो. एग्जैक्टली, यू नो इट फील्स लाइक दैट. या सो हमारे ट्रेनर्स भी वैसे ही हैं. You know, you will be very happy to know this, Richa. We have 14 trainers, and all the trainers has worked with international airlines as well as Indian airlines. So अगर एक trainer जिसने 15 साल as cabin crew कतर एयरवेज, एमिरेट्स एयरवेज के साथ फ्लाई करा है, जब वो इन नए बच्चों को ट्रेनिंग देगी तो it's going to be amazing. तो आप उनको लेके आते हो ट्रेनिंग देने के लिए? Yes, we take them, we hire them in our institute, we pay them a good amount of salary, and then these people train the kids. Pilots future यहाँ है. Correct. Airlines future यहाँ है. Airlines future Immigration future यहाँ है, because हम एक ethical approach के साथ यहाँ हैं. What better than that? Yes. So एक क्वेश्चन और है before we move on to controversial segment, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. What's been one of the most fulfilling success story in your journey? चाहे स्टूडेंट की हो या फैमिली की हो, जो जिनको आपने हेल्प की हो, कोई एक ऐसी जो दिल पे बस हमेशा याद रह जाती है? There are so many. There are so many. I still remember we had one female candidate. She wanted to be a cabin crew, and she don't wanted to be a cabin crew. Her father wanted her to be a cabin crew. But let's say अगर उसने 10th of July को interview देना था, 6th July को she lost her father, and she was like, I am done. And 1st July we informed her that you have an interview on 10th of July, and 6th July she got to know that she lost her father, and we said that it's okay, don't come, take your time, and once you better then come. You will not believe, हमने उसे कुछ confirmation नहीं दिया. 10th July she came, she given the interview, she did not inform anything to the HR, not to the employer people, and she told us कि किसी को मत बताना कि मेरे साथ कुछ ये tragedy हुई है, and she was hired as cabin crew. So she's like, ये मेरी blessings है. ऐसी बहुत stories है. एक interviews में हम लोग थे, there is a Radisson Blu hotel in महिपालपुर. So वहाँ पर हम थे, रात के 2 बज गए. एक airlines थी, I won't take the name, but रात के 2 बज गए क्योंकि rush बहुत था. We were there with her, और फैमिली मेरे साथ थी, उसकी मदर भी मेरे वहीं पर थी. रात को 2 बज गए और 2 बजे हमने उस कैंडिडेट का इंटरव्यू कराया. फाइनल सिलेक्शन हुआ रात को 2 बजे, रात को 2 बजे तक. एंड आई ड्रॉप देम एट देयर होम. दे स्टेज इन वेस्ट दिल्ली.
and I was there. I dropped them at their home. There are so many stories. There's so much which we don't know और हम realize भी नहीं करते कि actually में इतनी मेहनत लगती है. या बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. ये तो एविएशन है, इमिग्रेशन में इससे भी ज़्यादा मेहनत लगती है. फैमिलीज 15-15, 16-16 लाख रुपए बच्चे को यहाँ से दे के भेजते हैं विद दैट होप कि हमारा बच्चा वहाँ पे जाके अर्न करेगा या हमारा एक फ्यूचर सिक्योर करेगा, बढ़िया करेगा. और हमारे पास वो स्टूडेंट्स वहाँ पर है जिन्होंने आज अपने घर पे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख मंथली भेज रहे हैं. सो इससे ज़्यादा और सक्सेस स्टोरीज क्या हो सकती है. ये एक हैप्पी मोमेंट्स है जिसको हम हर बारी याद रखते हैं. किसी भी पेरेंट्स के लिए होगा. एंड आई थिंक आप लोगों को ब्लेसिंग्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, जैसे मेरे शो का नाम बियॉन्ड बॉर्डर्स है. Correct. आई थिंक देयर ब्लेसिंग्स आर बियॉन्ड इमेजिनेशन बिकॉज when their children who are going out, they're earning. Yes. That is something which really helps and give them a pride. It's a Correct. proud moment. It is. We are here because of blessings. हम लोग इस टाइम पे अभी तक बैठे हैं, ये blessings है. We have lot of blessings sure. and lot of blessing stories. मतलब ऐसी स्टोरीज है जिसको मैं याद कर करके ना अपने आप को बूस्ट करता हूँ, अपने आप को मोटिवेट करता हूँ कि yes, you know, this is something which gives me a kick and you know push me to do beyond borders. Right. So पृथ्वी आप पानी पी लो क्योंकि Yeah. next segment actually पानी पिलाने वाला ही है because we move on to a controversial segment. You have heard it right. इस segment को बोलते हैं Let's Talk Straight. Yes. कुछ चीज़ें हैं जो कि मार्केट में अफवाह समझ लो, सच्चाई समझ लो, क्योंकि हर चीज़ का प्रूफ है. मीडिया इज एक्चुअली द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन. इट्स अ बून और अ बेम, वी ऑल नो. बट कुछ क्वेश्चंस है जो कंट्रोवर्शियल है, तो पृथ्वी स्ट्रेट आंसर्स चाहिए. जी. यू प्रॉमिस आवर व्यूअर्स, राइट? Right. I have promised your viewers. I'll be honest. I'll be straight. ओके. And I'm straight. ओके. फेक ऑफर लेटर्स, Yeah. trust issues. In recent news, hundreds of students were caught with forged Canadian offer letters. What system do you follow at CITA to protect students from this nightmare? मैं आपको बताना चाहती हूँ, और न्यूज़ में हर जगह है जहाँ फेक ऑफर लेटर्स दिए जाते हैं. Yeah. और जो ट्रस्ट इश्यूज हैं वो अराइज होते, क्या हमें बच्चों को बाहर भेजना भी चाहिए? बिकॉज नथिंग बिफोर द किड्स, राइट? Yes. वो हाउ डू यू वांट टू आंसर दैट? So we do it very ethically. We do not promote any institute which has no reputation in the market. हम वो institutes पे, वो colleges पे, वो universities पे काम करते हैं जो एक publicly renowned है. They are affiliated. जैसे हमारे इंडिया में होता है ना, affiliated to CBSE, affiliated to Delhi University, ऐसे ही वहाँ पर भी affiliations है. So we do not promote any institute which is just private. आप ये बता रहे हो fake offers. मैं I've been to Canada. I've seen myself. एक रूम का कॉलेज है. कैन यू इमेजिन, एक छोटा सा कमरा और वो कॉलेज है. वहीं पे टीचर बैठा है, वहीं पे 2 स्टूडेंट्स बैठे हैं, दे आर लर्निंग. एंड आई यू नो जस्ट चेक विद दीज स्टूडेंट्स एज इन कैसे कहते सर बस आ गए, फंस गए, आ गए, पैसे जमा हैं, कहीं और जा नहीं सकते. सो वी थॉट टू कंटिन्यू इट हियर. एंड यू नो आई हैव सीन दैट. सो हम लोग वो प्रमोट ही नहीं करते. आई वर्क विद, इतने साल का एक्सपीरियंस है, कभी ऐसा इंस्टेंस रहा हो? क्योंकि गलती तो हो जाती है. हो जाती है. तो ऐसा कभी रहा हो कैसा? where you feel that you have given affiliation की आपने बात करी, you do a thorough check about an institute or university. Yeah. So has there been any case where you've had that fraudulent practice or something as an offer letter? No. It's 100% success. 100% success because Just saying in front of the camera, it's 100% success. it is 1000% success. Interesting. That's really Why? great. Like I said, हम affiliations पे चलते हैं. जी. So when it comes to something which has a credibility, we go with that institute. And like I said that I have traveled myself. So when we go to these places, we visit the universities. Oh, you do a personal check. Yes, we do visit the universities, and you know it gives you a pleasure and understanding, and then they give us the campus tour, which actually So the tells students who really think that पता नहीं सही है या नहीं, here Prithvi in front of you, who's there with CITA from the inception, he is giving 100% success ratio. Right, Prithvi? correct 100%. I think ये 2-3 words ही सारे आंसर दे देते हैं in terms of the question I asked. Yes. तो पहला controversial question का आंसर तो बहुत अच्छा दिया Prithvi. Thank you. Moving on to the next controversial question. Blacklisted consultants and high fees. With visa scams running into lakhs, why should family trust CITA with such large payments? What transparency system do you have in place? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड आई वांट टू गिव यू अ गुड आंसर्स ऑन दिस बिकॉज ये वो क्वेश्चन है जो हर फैमिली का है.
जो आपने ये क्वेश्चन पूछा है ना, ये आपका क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। मैं हर आपको फैमिली का क्वेश्चन। मैंने ये जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस उठाए हैं जस्ट फॉर एवरीबॉडी टू नो, जो न्यूज पोर्टल्स, गूगल पे मोस्ट सर्च्ड क्वेश्चंस, और जो मुझे लोगों ने बताया कि ये स्कैम्स हो रहे हैं, इसलिए मैंने उठाया एंड आई थॉट लेट मी ब्रिंग इट हियर, which was very important and thank you that you bring this question। जो हमारी ट्रांसपेरेंसी है ना रिचा, like I said that हमें क्यों ट्रस्ट किया जाए और हम क्यों, और हाई फीस क्यों नहीं, लो फीस क्यों, बिकॉज वी डू इट completely student and university। We are the consultant, we are the recruitment agency, we connect the student directly with the university। आपके पास ऑफर आया यूनिवर्सिटी से, उस पर कितनी फीस मेंशन है, एग्जाम्पल $10,000। सो $10,000 को अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, इट कम्स टू 8,50,000 US डॉलर। सो 8.5 लाख रुपए की फीस आई। आई वोंट से दैट यू पेड दिस टू सीटा और टू मी, आई विल टेल यू मैम गो एंड पे डायरेक्ट दिस टू द यूनिवर्सिटी। इससे अच्छी ट्रांसपेरेंसी क्या मिलेगी बच्चे को, जब वो बच्चा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को अपनी फीस पे कर रहा है। दैट्स वन थिंग। ट्रस्ट इश्यूज, सो व्हेन इट कम्स टू ट्रस्ट इश्यूज, ट्रस्ट वहां पर आता है जब आप अपनी कन्वर्सेशन को घुमाई जा रहे हो। आप अभी कुछ बोल रहे हो, कल को कुछ बोल रहे हो, परसों कुछ बोल रहे हो। विद अस इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज जस्ट स्ट्रेट कि आपने ऑफर आया, आपकी ये फीस आई, पे टू द यूनिवर्सिटी एंड मूव ऑन, गो टू द एम्बेसी, डू योर वीजा फाइलिंग एंड गो। आप अपना वो नहीं करते, आप डायरेक्टली इट्स बेसिकली क्लाइंट टू द यूनिवर्सिटी। करेक्ट। सो यू ब्रिज द गैप। यस, वी ब्रिज दैट गैप। कमाते कहाँ से हो फिर? कमाते हैं ना हम स्टूडेंट से एक छोटा सा सर्विस चार्ज लेते हैं, हम यूनिवर्सिटी से कमीशन लेते हैं। That makes sense. That is So that sensible actually amount. so it really gives you a zero tolerance thing, Yeah. where the clients are being scammed or the students Yes. are being scammed. Yes. हमने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं रिचा जी, फीस है 10 लाख रुपए, बच्चा वहाँ पे पहुंचा, वहाँ पे पहुंचने के बाद उसने अपने स्टूडेंट से, अपने कलीग से और फ्रेंड से वहाँ पे डिस्कशन करा, भाई तू कितने पैसे दे के आया? तो ज्यादा वो 25 लाख रुपए। वो पूछता है सीटा वाले बच्चे से, तू कितना लेके आया है? I know about this because when I was reading through the Google and the news portals, it was mentioned that the students going from India are paying different amount to the same university. Correct. So I think the answer which Prithvi gave, it actually bridges the gap between the students to the university. Yeah. And you know, I tell you one more thing, किसी स्टूडेंट को अगर और ट्रस्ट इशू आता है and they want direct conversation with the university, I can even arrange that for the student. You do that? We do that. So आप स्टूडेंट हो, आपने बाहर जाना है, आप वो कैंपस को देखना चाहते हो, आप उस यूनिवर्सिटी को देखना चाहते हो, आप अपने कोर्स के लिए और स्पेसिफाइड क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, I'll arrange your session directly with the university or with the professor of the university. मजे लो, एंजॉय करो, हेल्दी रिलेशन अपनी यूनिवर्सिटी से बनाओ, हेल्दी रिलेशन अपने एजेंट से बनाओ और प्यार से बाहर चले जाओ। Very rightly said। और इस पृथ्वी मेरा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कंट्रोवर्शियल सेगमेंट, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये कंट्रोवर्शियल सेगमेंट सिर्फ फर्स्ट एपिसोड तक रहेगा। वी वुड बी हैविंग सच क्वेश्चंस एवरी एपिसोड, सो इफ यू हैव प्लीज डू राइट इन कमेंट्स। पृथ्वी, हमारा आखिरी क्वेश्चन बिफोर वी मूव ऑन टू रैपिड फायर राउंड। जी। घोस्ट कॉलेजेस, मिसिंग स्टूडेंट्स। TOI reported over 20,000 Indian students who are untraceable in Canada. What do you do to ensure your students land in credible, safe institutes? I think थोड़ा बहुत आपने आंसर हमें already कर दिया है, but how do you react to this ghost colleges? Affiliation you said. Yeah. What is the other medium or mode you actually look into before sending the students? So इसका एक छोटा सा सिंपल आंसर देता हूँ, वैसे मैंने ऑलमोस्ट आपको बताया, बट इसका आपको एक और आंसर देता हूँ। हमारे इंडिया की वेबसाइट्स, it's 12 or 10% which is updated by every or any institute or any college or university. They do not just keep on updating. अगर आप बाहर किसी भी कंट्री देखो, आपने कनाडा बोला, आप यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, आप कनाडा, आप साइप्रस, कोई छोटी कंट्री देख लो, कोई अच्छी बड़ी कंट्री देख लो, they maintain their website and in their website they maintain even the course, even the university का everything whatever they are doing. So अगर किसी स्टूडेंट को जाना है ना, एक बार पहले जरूर रिव्यू कर ले कि मैं किस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ। So you have to review the website before going, guys. So Yes. पृथ्वी ने जैसे बोला, देर थोड़े से एक दो आप और लाइक चेक इन द बॉक्स दे दो स्टूडेंट्स को जो हमें देख रहे हैं और जिनके लिए, बिकॉज इट्स अ बिग थिंग। Yes, it is a big बच्चे thing. को बाहर भेजो और बच्चा ही ट्रेस ना कर पाओ। आई मीन
किसी भी पेरेंट्स के लिए, एंड इनफैक्ट फॉर द दिस बिग ऑर्गेनाइजेशन व्हिच यू कैरी, Yes, of course. it's something, comes it's from like our a name. stamp which cannot be recovered. So I tell you guys, अगर आपको कुछ भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है और आपको नहीं मालूम कि वो कितनी अच्छी है, you know, Delhi University, everybody know it's a good university, Right. but there you do not know, you know, is this a good university or it is not a good university. Like I said earlier, आप यूनिवर्सिटी के साथ हमें कांटेक्ट करो, हम आपको उस यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कराएंगे. दैट्स वन. नंबर 2, आप वेबसाइट पे जाओ, उनके रिव्यूज़, उनके कोर्स को रिसर्च करो. नंबर 3, अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो तो आपको हर एक चीज़ जेन्युइनिटी से मिलेगी. यू नो, एवरी एम्बेसी और एवरी कंट्री, they want good students, they want genuine students, they want students comes here with the ethical approach. हर बारी ये नहीं होता रिचा कि स्टूडेंट गोस्ट हो गया या कॉलेजेस ने स्टूडेंट को कुछ ऐसा कर दिया. मैनी टाइम इट हैपेंस, आई हैव सीन कि स्टूडेंट ने वहाँ जाके कॉलेज ही नहीं ज्वाइन करा, वो आगे मूव ऑन कर गया. जैसे हमारे इंडिया में होता स्कूल बंक कर दिया, उन्होंने कॉलेज ही बंक कर दिया. एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज. बट उसका भी सोल्यूशन है. अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे, वो आपको ऐसे जाने नहीं देंगे. अगर आप गए, दे विल राइट एन ईमेल टू एम्बेसी स्ट्रेट अवे दैट दिस पर्सन इज नॉट कमिंग टू आवर कॉलेज और यूनिवर्सिटी फ्रॉम सो एंड सो डेज, ट्रेस हिम. You know this happens? Yes. So this does happen and we have seen lot of instances like this. हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर आके हमारे ऑफिस में आके हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि अब कहीं और करा दो. वो हमारे नहीं थे, बट वो कहीं और से ये प्रॉब्लम फेस करके आए और हमारे पास आए और उन्होंने बोला अब किसी और कंट्री में करा दो. सो आई टेल यू वन मोर थिंग, अगर आप किसी भी कंट्री में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करके आते हो, यू गेट ब्लैकलिस्ट फॉर लॉट ऑफ कंट्रीज. सो सारे डोर्स बंद है. सो अगर आप यहाँ से जा रहे हो पढ़ने के लिए, बिंदास होके पढ़ो. ऐसा नहीं है कि सीटा के थ्रू जा रहे हो तो ही बिंदास होके पढ़ो. आप किसी भी के थ्रू जा रहे हो, बिंदास होके पढ़ो, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो और एथिकली वर्क करो. Countries allows you to work. You know, countries like Canada, US, UK, Australia, they allows you to work during your study. Yeah, I know about it. And एक लाइफ है, उसको अच्छे से जियो. ये सब करने से कुछ नहीं होगा. But then Prithvi very well answered. I must Thank say you. it really solves lot of questions which we really were looking forward. और जो डर है ना कि हमारा बच्चा वहाँ जाके खो तो नहीं जाएगा, क्योंकि जब हम अपने घर पे किसी को भेजते हो तो ये सब न्यूज़ बहुत इम्पैक्ट करती है. बहुत ज़्यादा. एंड आपने जैसे आंसर किया, आई थिंक इट्स द राइट वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड. अब आते हैं रैपिड फायर राउंड. Okay. सोचना नहीं है पृथ्वी, सीधा आंसर देना है. आवर क्लॉक इज टिकिंग, आवर एंटायर क्रू इज हियर, दे विल मेक श्योर दैट ही आंसर्स क्विकली. Okay. ठीक है? ठीक है. So ready? Yes. Okay, time for some fun, guys. I'll just ask you a question. You know how it works, right? I need to give one word answer. In quick word answer, Achha. 1 word, 2 words. It's completely your call, but quick answer without thinking twice. ठीक है जी. All right, are we ready? Yes, I am ready. Okay. One country students overrate. Overrate. Yes. Canada. Okay. One visa myth you want to break today. Every country want the good students. Okay. Hardest part of your job. To convince people that this is the right choice of the country. I think इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी. Okay. Most common parent worry. Funds. WhatsApp or email? What do students prefer? Email. The last question before we move on to the sensational questions. Fake agent in one word. मत करो भाई, सबके पैसे हैं, सही रहने दो. फेक मत करो प्लीज़. आप जो बच्चा जाना चाह रहा है उसको एक अच्छे तरीके से भेजो. 10 लाख का खर्चा है, 10 लाख ले लो. 10 नहीं लेना, 10.5 ले लो. 10 के 25 मत लो. So true. 10 के 10 ले लो भाई, 11 ले लो, मगर इतना बड़ा स्कैम मत करो, क्योंकि कुछ की वजह से हमें भी ये क्वेश्चंस आता है और अच्छे कंसल्टेंट्स को भी प्रॉब्लम्स आती है. बट यस, बाय गॉड ग्रेस हम कर रहे हैं मेहनत उसको इम्प्रूव करने की. देखो हो जाएगा तो अच्छा है. हो ही जाएगा. जैसे आपने 100% गारंटी ली है कि यहाँ पे सक्सेस रेशियो है. आई एम श्योर द लिसनर्स, द व्यूअर्स विल बी अमेज्ड बाय हियरिंग दैट, एंड 100% हो जाएगा. 100% होगा, 100% जेन्युइन काम होगा, 100% सक्सेस मिलेगी इफ़ योर प्रोफाइल इज़ गुड. वीज़ा देना एम्बेसी का काम है, हमारा काम है आपको उस वीज़ा रूम तक पहुँचाना. वहाँ तक मैं 100% पहुँचा दूंगा. अच्छी प्रोफाइल हो. वीज़ा देना एम्बेसी का काम है. वीज़ा में एम्बेसी मेरी अच्छी प्रोफाइल का मतलब क्या है? बिकॉज आपने पहले भी यूज़ किया. अच्छी प्रोफाइल का मतलब ये है कि
एक प्रोफाइल जिसके 50% हो, दैट्स अच्छी प्रोफाइल फॉर अस. अच्छा 50%. एक प्रोफाइल जिसके 99% हो, दैट्स आल्सो अच्छी प्रोफाइल फॉर अस. ठीक है. सो अच्छी प्रोफाइल इन द सेंस देयर शुड नॉट बी अ ह्यूज गैप. सो somebody who has done his 12th in 2012 and now in 2025 he wants to go abroad, वो possible नहीं है. If somebody has done 2015 में 12th करा है, 2018 में graduation करी है, after that there is a 7-8 years of gap, मैं फिर भी भेज दूंगा. वो प्रोफाइल मेरे लिए अच्छी है. इट शुड नॉट बी लाइक दिस कि 2008-9 में 12th करी है, 12 में मैंने ग्रेजुएशन करी, अब 12 साल हो गए, अब पढ़ाई के लिए भेजो. एम्बेसी कहेगी भाई पढ़ने थोड़ा ना आ रहा है, अब तो तेरा टाइम है सेटल होने का. करेक्ट, एब्सोल्युटली. तो ये अच्छी प्रोफाइल का मतलब है. अच्छी प्रोफाइल ये नहीं कि हमें स्कॉलर बच्चा चाहिए, हमें टॉपर चाहिए, एमईटी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी का एकदम फर्स्ट क्लास बच्चा चाहिए. वही मैं सोचूं अच्छी प्रोफाइल तो यहाँ पे तो ये होती है कि 99% हमारे ग्रेजुएशन में आ रहे हैं और बाकी हमें पता ही नहीं 12th में अच्छी प्रोफाइल. मतलब ये भी बहुत आजकल पेरेंट्स का मिथ 99 है. भी कम है एक्चुअली. अरे ये पेरेंट्स का बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है. पेरेंट्स आप प्लीज मत करो पुश. देखो अगर आप 99% लेके आ रहे हो तब भी आपको जॉब मिलनी है, अगर आप 60% लेके आ रहे हो तब भी आपको जॉब मिलनी है, आप 50% लेके आ रहे हो तब भी जॉब मिलनी है. सो फर्क है कहाँ पे. सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा. आपने क्या बोला स्टार्टिंग में कि यार पेरेंट्स का बहुत कंसर्न है हमारा बच्चा सेफ रहे, तो मेरा ये भी कंसर्न है भाई 99% पे बच्चे को मेंटली हरास मत कर दो. उसको 60% भी लाने दो, 50% भी लाने दो, मजे करने दो, पढ़ने दो. पढ़ना जरूरी है आज की डेट में ना. एवरीथिंग इज ऑन योर कम्युनिकेशन. देयर इज आई मीन मैंने इतने सारे फैमिलीज, इतने सारे स्टूडेंट्स को देख लिया है. दे आर गुड इन सब्जेक्ट्स, दे आर गुड इन मार्क्स, दे आर गुड इन देयर कम्युनिकेशन है ही नहीं. कम्युनिकेशन लैक्स बिकॉज हरियाणा पंजाब में 99% ले आओ जी, कम्युनिकेशन वही है. माई नेम इज अर्प्रीत, बच्चा वहीं फंस जाता है. आज आप इतनी अच्छी टॉप मोस्ट एमएनसीज है गुड़गांव में जहां पे मैंने देखा है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम हरियाणा एंड पंजाब, दे आर डूइंग वेल, दे आर वर्किंग सो वेल, बट येस ओनली थिंग इज कम्युनिकेशन. 60% वाला बच्चा ही मैंने देखा लाख रुपए कमा रहा है और 99% वाला बच्चा भी देखा लाख रुपए कमा रहा है. बट मेहनत जरूर करो. एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, मैंने एमबीए करी फाइनेंस में, फिर मैं एक वन ऑफ द लीडिंग एमएनसी में थी, बट आई चेंज माई ट्रैक. बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने फाइनेंस टू फैशन किया तो मेरी एजुकेशन वेस्ट हो गई. नहीं, एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल wherever you go, whatever you do. Even Prithvi looks all around her, and ऐसे ही नहीं, but I'm sure there is a my dad has taught me a lot. There is groundbreaking rules and which I think you excelled in. My dad has taught me a lot. हमारे फादर साहब ने हमें बहुत कुछ सिखाया है. हमारे फादर साहब ने कहा है कि सिर्फ पढ़ते मत जाओ, पब्लिक को देखो, मार्केट को देखो, because the more you are in market, the more you will learn. इससे मुझे याद आया पृथ्वी, सॉरी टू इंटरप्ट, हमने सबसे पहले जब ये एपिसोड शुरू किया स्टार्टिंग में बोला था प्रैक्टिकलिटी, और मैंने कहा था मैं जरूर दिखाऊंगी कि मैं कहाँ बैठी हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकलिटी पे आप वर्क करते हो. सिटा वर्क्स ऑन प्रैक्टिकलिटी, एंड वो जरूर हम बस थोड़ी देर में दिखाएंगे. लास्ट 2 क्वेश्चंस, और इसको मेरी टीम ने नेम किया सेंसेशनल क्वेश्चन राउंड. लास्ट 2 क्वेश्चंस पृथ्वी, बिफोर वी एंड दिस एपिसोड 1. डन है. आर यू रेडी? आई एम रेडी. परफेक्ट. आई एम रेडी विद ऑल नेचुरल आंसर्स. बिलीव मी, आपके आईपैड ने बहुत कुछ प्रिपेयर करा हुआ है जी. मैंने कुछ सिंगल भी चीज प्रिपेयर नहीं करी, और मुझे ये क्वेश्चंस आप जो पूछ रहे हो, मैं यहाँ से सुन रहा हूँ, यहाँ से आंसर दे रहा हूँ, यहाँ से सुन रहा हूँ, यहाँ से सुन रहा हूँ, यहाँ से भी आंसर दे रहा हूँ. मतलब मैं आई एम जस्ट गोइंग बाय माय हार्ट एंड माइंड. कुछ आंसर्स ये यहाँ से दे रहे हैं बिकॉज एट द एंड जब 2 तरीके होते हैं, या तो किसी पेपर में जाते हो तो रट्टा मार लो, या उसको प्रैक्टिकली जी लो, उसको समझ लो कि वो एग्जैक्टली होता कैसे है. एंड आई डोंट डाउट दैट पृथ्वी, यू हैव लिव्ड दिस ओवर द इयर्स विद, ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी पीपल who work under you, or the ones who are actually the foundation of this. So you are actually a living example for how a practical person can really make it through. Yes, अपने फ्रेंड्स, अपने फादर को, अपनी मदर को फ्रेंड्स बनाओ, आपको ये सब कुछ सीखने को मिल जाएगा. माय फादर वाज माय फ्रेंड, माय मदर इज माय फ्रेंड, और वही काम आ रहा है, वही काम आ रहा है. So the ground values are very important to lead your life. I have a beautiful family. I have a beautiful family. मुझे अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. I've learned lot from my father. I'm learning from my brother. Next episode में हम जरूर फैमिली का भी कुछ एक ट्रिकी क्वेश्चन. Yeah, sure. इससे पहले हम चलते हैं अपने नेक्स्ट राउंड में, ठीक है?